extra time. कुलदीप ये शिकार करने के लिए दोनों तरफ से प्रेशर बढ़ाना कितना ज़रूरी होता है, और जब ऐसा विकेट हो तो पेशेंस रखना कितना ज़रूरी होता है स्पिनर के लिए? बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप दो स्पिनर के साथ खेल रहे हैं तो ऑब्वियसली जड्डू भाई बहुत जल्दी जल्दी ओवर करते हैं और अच्छी लाइन से बॉल डालते हैं, तो उतना इजी होता है दूसरे एंड में बॉल डालना, क्योंकि फिर आप ट्राई कर सकते हैं चीज़ें और आप वेरिएशन यूज़ कर सकते हैं। और विकेट काफ़ी अच्छा है, मुझे लगता है स्पिनर्स के लिए अच्छा विकेट है। बहुत बहुत कुछ है विकेट में, टर्न भी है, बाउंस भी हो रहा था, तो मेरे हिसाब से अच्छा विकेट है बॉलिंग करने के लिए। First three tests you didn't play, and how did you keep yourself motivated and prepared for this match? When you got a couple of we got Ashwin and Jadeja, they are the best spinner, and you are the third one, so there's lot to motivate it from them, and they are the one who keep pushing me in during nets, that you have to ball this and you have to ball in certain areas. So I was very motivated by them, and it's very important to learn from them. They played enough cricket, and I'm still learning. Kuldeep, how satisfying was it picking up Australia's best batsman with a wrong and to pick him up in that way? I was just bowling with the normal field, I was just planning to bowl wrong one, but a couple of over back I was just bowling Chanaman, and I knew that he gonna come after me, and he's gonna go for maybe mid wicket or maybe mid on. So I was very lucky that that wrong one pitched in a perfect area and straight to the mid wicket. So was very happy. कुलदीप, जब इंडिया में खेलते हो, जब विकेट स्लो होता है, यहाँ पे थोड़ा सा बाउंस मिलता है, तो क्या चेंज करने पड़ता है आपके बॉलिंग में, आपको लगा? टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया। फर्स्ट टेस्ट मैच खेल रहा हूँ सीरीज़ का, तो ऑब्वियसली थोड़ा नर्वस था, और मेरे हिसाब से विकेट मेरे लिए कभी फ़र्क नहीं पड़ा, चाहे टर्नर पे खेलो या फिर फ्लैट विकेट पे खेलो। मेरे लिए बहुत अच्छा विकेट था बॉलिंग करने के लिए। थर्ड डे बॉलिंग करना किसी भी स्पिनर के लिए बेस्ट टाइम है बॉलिंग करने के लिए। तो अपॉर्चुनिटी मेरे लिए थी कि मुझे अच्छा बॉल डालना है, एक अच्छे एरिया पे डालना है, अच्छी लाइन से डालना है, क्योंकि जब आप अच्छे लाइन से डालते हो तो आपके पास वेरिएशन है, तो आप उसको कंट्रोल कर सकते हो, तो बहुत इंपॉर्टेंट था वो। Kuldeep, I was just wondering, we've seen, especially I guess last year in England, as your career has come along, batsmen have found it hard to pick you, and then they've found ways to counter-attack. Has that been a challenge for you then, to keep finding ways to become harder for them to counter-attack? How do you do that? Sometimes it's hard, when the batsman picking you, and that's the beauty of cricket. You have to keep learning every day, and I'm still learning every day. And the England tour was challenging for me, when I played there in the last test match, and after that I really work on my bowling with my coach. So it's for spinner, any spinner, if it's very important to stick with the basic, and just follow the spin, what we call that, the basic thing of spin bowling, just to give a little bit flight, turn the ball. That's more important thing in a perfect area, deceiving the batsman in the air. That's more important thing for me, and still working on that. And I don't believe in mystery, something like that. If you're good enough to deceive the batsman in the air, that's more important thing for me, and I'm looking forward for that only. कुलदीप, जब आप बॉलिंग कर रहे होते हैं और वनडेज में, तो आप कहते हैं कि MS धोनी होते हैं वहाँ पे जो आपको टिप्स देते हैं। अभी टेस्ट मैचेस में आप बॉलिंग कर रहे थे, तो किसी से आप राय लेते हैं जब बॉलिंग कर रहे होते हैं? कौन आपकी थोड़ा हेल्प करता है? अभी इतनी क्रिकेट खेल लिए कि अभी नॉलेज हो गया ज़्यादातर, और टेस्ट क्रिकेट में ऑब्वियसली अभी थोड़ा टाइम लगेगा और शायद और इम्प्रूव करने में, क्योंकि जितना आप क्रिकेट खेलेंगे रेड बॉल से, आप उतना इम्प्रूव करेंगे। तो डेफिनेटली बहुत से सीनियर प्लेयर हैं टीम में, विराट भाई हैं, ऋषभ भी काफ़ी बताता रहता है कि कोई भी विकेट कीपर रहता है तो बता देता है। ऑब्वियसली वनडे में थोड़ा इजी है, क्योंकि अब वो रेगुलर क्रिकेट खेल रहे हो, और आप माही भाई रहते हैं वहाँ पे, तो उन्होंने इतनी क्रिकेट खेली है, तो बताते रहते हैं क्या करना है। तो टेस्ट क्रिकेट भी ऐसा ही है, अगर आप जितना क्रिकेट खेलेंगे तो उतना ही आप बैट्समैन को रीड करेंगे, और बहुत टाइम रहता है आपके पास टेस्ट क्रिकेट में कि आप प्लान कर सकें किसी बैट्समैन के लिए, क्योंकि आप बस ज़्यादा ओवर डाल सकते हैं,
फील्ड पोजीशन आप चेंज कर सकते हैं कभी भी। वनडे में आपके पास लिमिटेड ओवर हैं, 10 ओवर हैं, आप उसी में ही बॉलिंग करनी है। एक फील्डिंग पोजीशन है कि आपके 4 फील्डर बाहर रह सकते हैं। तो टेस्ट क्रिकेट बहुत डिफरेंट है वनडे क्रिकेट से। तो और अभी हमारी टीम में काफ़ी सीनियर ऐसे प्लेयर हैं जो बात करते रहते हैं और बताते रहते हैं। Kuldeep, it's also been great to see that the fielders have honoured the good bowling by the quality of catching and fielding. It's something that the team has consciously worked on really hard to make that a hallmark of the way you play. Yes, obviously we got a best fielding coach and Sridhar sir, and we are really working on slip fielding, slip catching, and obviously short leg, silly point, outfield as well. So now we are the best. I feel like we are the best in the world to in comes of when it comes of for fielding. So it's really important. For anyone, for every player to give 15-20 minutes in the practice session to do some fielding works, and we are still learning, and hopefully we can improve day by day, and still managing everything. It's very important. Fielding is a very important part of cricket, and so catching is in Test cricket it's something really important. If you take catches and stop runs, that's really put pressure on the batsman. So we are very happy now. कुलदीप की जो टेस्ट मैचेस के बीच में थोड़ा गैप आ जाता है, जैसे लॉर्ड्स में खेले यहाँ खेले, तो नेट्स में किस तरह से आप अपने आप को रेडी रखते हैं या क्या करते हैं उस पीरियड में कि जब आपको मौका मिले जैसे आज आपको मौका मिला तो आप मेंटली तैयार हो, क्या करना है उसमें? ऑब्वियसली बहुत प्रेशर रहता है क्योंकि आप वनडे क्रिकेट खेलते रहते हो रेगुलर, फिर उसके बाद रेड बॉल आती है, टेस्ट क्रिकेट आता है, फिर आपको माइंडसेट चेंज करना पड़ता है। तो आपको कम से कम 10 दिन तो लगेंगे किसी भी में। एज ए लेग स्पिनर मैं बिलीव करता हूँ कि आपको 10 दिन 12 दिन लगते हैं कि उस चीज़ से आके रेड बॉल पकड़ना, उस पर कंट्रोल करना। अगर आप रेगुलर नेट पे बॉलिंग करते रहेंगे तो आप थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं, पर आप मैच खेलेंगे तो ज़्यादा इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको मैच प्रैक्टिस चाहिए होती है क्योंकि 4 डे क्रिकेट अलग है, 5 डे टेस्ट मैच क्रिकेट बहुत अलग है वनडे से। तो जब मैं लॉर्ड्स टेस्ट से वापस आया था तो मैंने एक हफ्ते मैंने अपने कोच के साथ बॉलिंग की थी। फिर उसके बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया ये टेस्ट सीरीज़ थी बेंगलोर में। सो वहाँ पे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया क्योंकि जब आप रिदम आ जाता है आपका तो आपका बॉल अच्छा चलने लगता है। फिर उसके बाद वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ थी तो काफ़ी अच्छा रहा और बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्पिनर के लिए, क्योंकि अगर आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप बेटर होंगे। आप मैच प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। Hit the subscribe option and the bell icon to get all the exclusive sports videos on Extra Time.